हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर विच इज़ चैप्टर 2 लॉ एंड मेडिसिन। सबसे पहले देखते हैं लॉ इन रिलेशन टू द मेडिकल प्रोफेशन। इंडिया में जनरल कंट्रोल मेडिकल प्रोफेशन का वेस्ट हुआ है विद द मेडिकल काउंसिल्स। ये क्रिएट हुई है अंडर द मेडिकल एक्ट। इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916 प्रिंसिपल है ऑल इंडिया स्टैट्यूट का, जो रेगुलेट करता है ग्रांट ऑफ टाइटल्स इम्प्लाइंग द क्वालिफिकेशन इन द वेस्टर्न मेडिकल साइंस। ये ऑल्सो पेनलाइज करता है पर्सन को जो वॉलंटरीली या फास्टली अज्यूम करें एनी मेडिकल टाइटल और यूज़ एनी इमिटेशन ऑफ सच टाइटल्स। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933 whereby the Indian Medical Council was created is now replaced by the Indian Medical Council Act 1956 and the Indian Medical Council Amendment Act 1964 which extend to whole of India. Several state of government have created the State Medical Council by passing the State Medical Council Act. Question: describe in brief the function of Indian Medical Council, State Medical Council. Number 2, what is meant by registration? Outline the procedure of inquiry into the professional misconduct of a registered medical practitioner and state the action that can follow from such an inquiry. Next question: what is meant by infamous conduct in a professional respect? In a professional respect, illustrate your answer with suitable example. सबसे पहले what is medical etiquette and medical ethics? What is medical kidnapping? Indian Medical Council MCI. इंडियन मेडिकल काउंसिल कंसिस्ट करती है सर्टेन मेंबर ऑफ प्रोफेशन के जो इलेक्ट होते हैं हर स्टेट से, हर यूनिवर्सिटी से, और नॉमिनेट होते हैं कुछ उनसे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स। ये काउंसिल कैरी करती है पर्पस ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट through an executive committee and through such other committees as the council may deem necessary. These committees are constituted from amongst the member. The main function of the council relate to number 1 undergraduate and postgraduate medical education, number 2 medical qualifications, number 3 register of medical practitioner, register of the medical practitioners, advising the central health ministry on appeal against disciplinary action taken by the state medical council. Number 5 issuing of warning notices. Number 6 issuing certificates of good conduct and character to the doctor going abroad. Number 7 होता है sponsoring and organizing the continuing medical education CME programs. एंड नंबर 8 प्रिस्क्राइबिंग अ कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। सबसे पहले देखते हैं मेडिकल एजुकेशन। ये जो काउंसिल है ये मेंटेन करती है स्टैंडर्ड अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के, और ये ले डाउन करती है रिक्वायरमेंट जैसे कि अकोमोडेशन हो गई, इक्विपमेंट हो गया, टीचिंग का स्टाफ और उनकी क्वालिफिकेशंस एंड अदर फैसिलिटीज़। ये आल्सो देती है, अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर्स ताकि वो इंस्पेक्ट करें इन रिक्वायरमेंट्स को और स्टैंडर्ड करें एग्जामिनेशन को हेल्ड बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ इन द इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ recommending the recognition of the medical qualification awarded by them to the central government. इस तरह की इंस्पेक्शन हेल्ड होती है हर मेडिकल क्वालिफिकेशन में, जबकि when it is introduced and every 5 years thereafter अगर requirements met नहीं होती with या फिर unsatisfactory found होती हैं तो it can make a representation to the central government to withdraw the recognition of any medical qualification of such a medical institution or university. It prescribes the standard for postgraduate medical education, उसके लिए भी for the guidance of the universities. It also lay down करती है criteria for the transfer of the student from one medical college to another. Next है medical qualification. ये रिकॉग्नाइज करती है मेडिकल एक्ट अंडर 3 स्केड्यूल ऑफ क्वालिफिकेशन। फर्स्ट है स्केड्यूल इंक्लूड करता है रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशंस ग्रांटेड बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। सेकेंड वन इंक्लूड करता है रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द इंडिया। पार्ट 1 जो है ऑफ द थर्ड स्केड्यूल वो इंक्लूड करता है रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट स्केड्यूल, और जो पार्ट 2 है वो इंक्लूड करता है रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन जो ग्रांट होती है बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया नॉट इंक्लूडेड इन द सेकंड स्केड्यूल। ठीक है, काउंसिल को अथॉरिटी है कि वो एंटर करे
into the negotiations for the setting up of the schemes for reciprocal recognition of the medical qualification with the authority in any state or country outside the India which is entrusted by its constitution with the maintenance of a register of a medical practitioner. Special provision is made in certain cases for the recognition of medical qualification granted by the medical institution in countries with which there is no scheme of reciprocity. नेक्स्ट है मेडिकल रजिस्टर. ये मेंटेन करता है इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर अ रजिस्टर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का नोन एज द इंडियन मेडिकल रजिस्टर, जिसमें नाम होते हैं सारे पर्सनस का जो इनरोल होते हैं किसी स्टेट मेडिकल काउंसिल में और रजिस्टर होते हैं आफ्टर द रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन. टू इंश्योर कि डॉक्टर्स अपडेट रहें अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली, दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने डिसाइड किया है कि डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन द दिल्ली हैव टू अप्लाई फॉर द फ्रेश रजिस्ट्रेशन 5 सालों के बाद. तो ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है बिफोर अदर स्टेट्स अडॉप्ट करें इस तरह का मेजर. डेवलप्ड कंट्रीज़ में डॉक्टर्स हैव टू अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन हर 5 साल के बाद. यूएस में फॉर इंस्टेंस डॉक्टर्स को हैव टू फुलफिल द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन बिफोर कि वो रजिस्टर करें अगेन. CME credit hours are now insisted in many states of India. Next है advice on the disciplinary action. ये एडवाइस करता है सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री को व्हेन एन अपील इज़ मेड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑन द डिसिप्लिनरी मैटर्स. फिर है वार्निंग नोटिसेस. ये इशू कर सकते हैं वार्निंग नोटिसेस इन रिलेशन टू द सर्टेन अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो कि रिगार्ड होती हैं एज फॉलिंग विद इन द मीनिंग ऑफ टर्म इनफेमस कंडक्ट जिसको कहते हैं इन अ प्रोफेशनल रिस्पेक्ट. फिर सर्टिफिकेट्स हैं. ये एम्पावर होते हैं टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट एंड कैरेक्टर टू द मेडिकल स्टूडेंट्स को या फिर डॉक्टर्स को गोइंग अब्रॉड फॉर द हायर स्टडीज़ या फिर सर्विस के लिए. CME प्रोग्राम क्या है? ये स्पॉन्सर करता है और ऑर्गेनाइज करता है कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए टू हेल्प अपडेट देयर नॉलेज. कोड ऑफ एथिक्स क्या है? ये फॉलो करता है डिक्लेरेशन जिनेवा की एज अ मॉडिफाइड बाय द वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन. काउंसिल अपॉइंट करती है रजिस्टर फॉर इट्स डे टू डे वर्क जो इंक्लूड करता है मेंटेनेंस इंडियन मेडिकल रजिस्टर की और टू अपडेट इट periodically by erasing the names of those practitioners who have died or who have been convicted by a criminal court or who have been found guilty of the infamous conduct in the professional respect, and by restoring the names of those practitioners whose period of temporary erasure expires. ठीक है. फिर है स्टेट मेडिकल काउंसिल. अब स्टेट मेडिकल काउंसिल कंसिस्ट करती है मेंबर्स का जो इलेक्ट होते हैं बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एंड दोज नॉमिनेट जो होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट से. प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑफ द काउंसिल वो इलेक्ट होते हैं बाय द मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स देमसेल्व्स. मेन फंक्शन स्टेट मेडिकल काउंसिल का क्या है? वो है नंबर 1 मेंटेन करता है रजिस्टर को, मेंटेनिंग द रजिस्टर. नंबर 2 मेडिकल एटिकेट एंड एथिक्स. नंबर 3 डिसिप्लिनरी कंट्रोल एंड नंबर 4 वार्निंग नोटिसेस. स्टेट मेडिकल रजिस्टर देखते हैं. देखिए रजिस्ट्रार या सेक्रेटरी जो होता है काउंसिल का मेंटेन करता है रजिस्टर को इन द प्रिस्क्राइब मैनर में टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर विद इन इट्स जुरिसडिक्शन. कोई भी डॉक्टर जो पोजेस करता है रिक्विसाइड मेडिकल क्वालिफिकेशन जैसे कि प्रिस्क्राइब होती है बाय द इंडियन मेडिकल काउंसिल वो एलिजिबल होता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी. अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट की जाती है टू अ डॉक्टर जिसने पास किया हो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, लेकिन उसको अंडरगो करना होता है सर्टेन पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में बिफोर सच क्वालिफिकेशन इज़ कन्फर्ड ऑन हिम. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रजिस्ट्रार जो होता है उसकी ड्यूटी है टू इन्फॉर्म द इंडियन मेडिकल काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम अबाउट द एडिशंस जो हुई हैं और जो डिलीशंस हुई हैं फ्रॉम द स्टेट मेडिकल रजिस्टर में से. एज लॉन्ग एज अ डॉक्टर रजिस्टर होता है एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इंजॉयज़ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस. नंबर A वो इंटाइटल होता है टू सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस एनी वेयर इन द इंडिया और प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिसिन को जो लिस्ट होती हैं इन द डेंजरस ड्रग एक्ट. नंबर B he can hold official and semi-official appointments.
Number C, he can sign statutory medical certificates such as birth, death, and mental illness, etc. Number D, he can perform medico-legal autopsies also. He can give evidence as an expert also. He is exempted from serving on jury and at an inquest, and he can sue for his fees in a court of law unless he is prevented from doing so by the institution whose qualification he holds. Next है medical etiquette and medical ethics. टर्म मेडिकल एटिकेट और मेडिकल एथिक अंडरस्टूड होती है बाय कन्वेंशन एज फॉलोज. सबसे पहले मेडिकल एटिकेट देखें तो ये सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न है विद द कन्वेंशनल लॉज. ठीक है, ये देख लें. नेक्स्ट है मेडिकल एथिक्स. ये सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न है विथ मोरल प्रिंसिपल्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इन देयर डीलिंग विथ ईच अदर, देयर पेरेंट्स, देयर पेशेंट्स एंड देयर स्टेट. एम होता है टू ऑनर एंड मेंटेन द नोबल ट्रेडिशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन. टू गिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल, टू गिव अ फ्यू एग्जांपल, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसको चार्ज नहीं करना चाहिए पेशेंट को जो कि अंडर केयर है ऑफ अनदर प्रैक्टिशनर. ही शुड नॉट रिफ्यूज़ टू गिव द प्रोफेशनल सर्विस ऑन द रिलीजियस ग्राउंड. और उसको ड्यूटी रिमेंबर करनी चाहिए टू द स्टेट इन रिलेशन टू द नोटिफाइबल डिजीज़, to the public and to the public to give the emergency care on the humanitarian grounds. Medical kidnapping क्या है? An Indian woman alleged medical kidnapping of a terminally ill patient who underwent liver transplantation and spent more than ₹1 crore. This involved an ordeal with 2 private hospitals, triggered debate on high rates charged for the medical care and treatment in hospitals. Women wants appropriate action to be taken against those hospitals which are established to help the ailing members of the society. She talks of the unnecessary and forced stays in the ICUs and the readmission for the purpose of charging the bills and not for the relief of suffering. This type of episode she labeled as medical kidnapping. Next है Declaration of Geneva. Oldest code of medical ethics is Hippocratic Oath. It is now restated in modern style by the World Association and अब ये कहलाता है Declaration of Geneva. ये फॉलो होता है by Medical Council of India से as a code of ethics. Accordingly, her applicant at the time of registration shall submit following written and signed declaration to the concerned registrar, attested by the registrar himself or a registered medical practitioner. Any deviation therefrom is treated as unethical practice. Number 1. I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity. Number 2. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due. Number 3. I will practice my profession with conscience and dignity. Number 4. The health of my patient will be my first consideration. Number 5. I will respect the secrets confided in me. I will maintain by all means in my power the honor and noble traditions of the medical profession. My colleagues will be my brothers. Number 7. And number 8. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party politics या social standing to intervene between my duty and my patient. Number 9. I will maintain the utmost respect for the human life from the time of conception. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity. Disciplinary control पढ़ते हैं. State Medical Council exercise the disciplinary control over their members by reprimanding or erasing temporarily or permanently from the register the name of the practitioner found guilty of infamous conduct in any professional respect, also known as professional misconduct. They have also the power to direct the restoration of any name so removed. यानी उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, उसको उनको पावर है. इनफेमस कंडक्ट या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट डिफाइन होता है एज अ कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ हिज प्रोफेशन.
which would be reasonably regarded as disgraceful या फिर dishonorable by his professional colleagues of good repute and competence. State Medical Council take the cognizance of any offence of misconduct committed by a registered medical practitioner only, number 1, when a written complaint in this respect is received by them, or number 2, when a medical practitioner is convicted by a court of law. इन्हीं दो कंडीशंस पे ऐसा कर सकते हैं, स्टेट मेडिकल काउंसिल कर सकती है. आफ्टर हियरिंग द कंप्लेन एज वेल एज द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स either in person or through his lawyer, the council decide whether any disciplinary action is necessary. डिपेंड करता है ऑन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस. द एक्शन जो है वो हो सकता है इन द नेचर ऑफ अ वार्निंग हो सकती है, या फिर नंबर 2 इरेश्योर हो सकता है, इरेजर ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर आइदर फॉर अ टेम्पररी पीरियड के लिए, या फिर वो परमानेंट भी हो सकता है. इस तरह का इरेजर जो है उसको पेनल इरेजर कहा जाता है, पेनल इरेजर. और जब ये परमानेंट हो जाता है तो उसको प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस कहा जाता है. ये डिप्राइव करता है प्रैक्टिशनर को ऑफ ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इंटाइटल होता है टू अपील टू द सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द स्टेट मेडिकल काउंसिल, and the ministry in consultation with the Indian Medical Council may modify the same. Following list दे रही है कुछ एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस की जो कॉन्स्टिट्यूट करती है व्हाट इज टर्म्ड एज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. काउंसिल प्रिक्लूड नहीं होती फ्रॉम द कंसिडरिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर दिस लिस्ट. सबसे पहले एसोसिएशन विथ अनक्वालिफाइड पर्सन, ये इंक्लूड करती है एम्प्लॉयमेंट अनक्वालिफाइड या फिर अनरजिस्टर्ड असिस्टेंट्स की. नंबर 2 असिस्टिंग अनक्वालिफाइड पर्सन को एज बाय गिविंग एन एनेस्थेटिक किसी प्रोसीजर के लिए. नंबर 3 है हैविंग रिलेशन विद द अनसर्टिफाइड पर्सनस विच इनेबल देम टू प्रैक्टिस मिडवाइफरी या फिर इशूइंग द सर्टिफिकेट विच इनेबल सच प्रैक्टिसेस टू अकर. कवरिंग ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सन. नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग. अब एडवर्टाइजिंग में देखिए तो डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग इंक्लूड करती है नंबर 1 अनयूजुअली बिग नेम प्लेट हो गई. नंबर 2 इंसर्टिंग नेम इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर इन अ स्पेशल प्लेस में या फिर बोल्ड टाइप. नंबर 3 प्रिस्क्रिप्शन पेपर जिसमें एनीथिंग अदर हो देन हिज नेम, क्वालिफिकेशन, स्पेशलिटी, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड सर्विस टाइमिंग, इनके अलावा कुछ हो. नंबर 4 नोटिफिकेशन इन द ले प्रेस ऑफ हिज एड्रेस और टेलीफोन नंबर और कंसल्टिंग आवर्स अनलेस ही हैज़ नंबर 1 स्टार्टेड अ प्रैक्टिस अफ्रेश, नंबर 2 चेंज्ड हिज ऑफिस, नंबर 3 रिज्यूम्ड द प्रैक्टिस आफ्टर अ टेम्पररी एब्सेंस, या फिर नंबर 4 चेंज कर दिया उसने टाइप ऑफ हिज प्रैक्टिस को इन विच केस सच एन अनाउंसमेंट मे अपीयर नॉट मोर देन ट्वाइस. अब है इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग, तो उसमें आ जाता है नंबर 1 अदर देन कॉन्ट्रीब्यूटिंग आर्टिकल्स टू ले प्रेस ऑन पब्लिक हेल्थ एंड एलाइड मैटर्स. नंबर 2 अपीयरेंस ब्रॉडकास्टिंग पे या फिर टेलीविज़न पे which may have the effect of advertising. Number 3 allowing the use of his name on the price list of publicity materials. Canvassing would ordinarily mean using of touts या फिर agents for procuring patients. Next है adultery. A doctor should not abuse his position to seduce a female patient या फिर some other member of the family. नंबर डी है अबॉर्शन, ये इंक्लूड करता है प्रोक्यूरिंग, असिस्टिंग या फिर अटेम्प्टिंग टू प्रोक्यूर एन इलीगल अबॉर्शन. नेक्स्ट है डिसरिगार्ड ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू पेशेंट्स बाय नंबर 1 यूज़ अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स का, नंबर 2 नॉट फर्निशिंग द पेशेंट विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स के बारे में या डाइट, नंबर 3 गिविंग द पॉजिटिवली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जैसे कि बिनाइन ट्यूमर इज़ कैंसर एंड परफॉर्मिंग अननेसेसरी ऑपरेशन, तो ये भी.
नंबर 4 होता है ऑर्डरिंग अननेसेसरी लैब टेस्ट। 5वां होता है कि नॉट अटेंडिंग द पेशेंट, जो कि ऑलरेडी अंडर उसके ट्रीटमेंट में उस डॉक्टर की। नंबर 6 है उस पेशेंट को अटेंड करें वाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक या ड्रग्स। नंबर 7 होता है सडनली टर्मिनेट कर लें सर्विस को टू अ पेशेंट। नंबर 8वां होता है कि अरेंजिंग अ सब्सटीट्यूट विदाउट प्रायर इंटीमेशन टू द पेशेंट। नंबर 9 एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अ पेशेंट विदाउट हिज वैलिड कंसेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवॉइडिंग कंसल्टेशन। इसको देखें तो देखें इन सर्टेन सिचुएशन, उनमें मतलब कंसल्टेशन को अवॉइड करना, जैसे कि इन केस ऑफ पॉइजनिंग जब डायग्नोसिस डाउट में हो, व्हेन अ केस हैज़ टेकन अ सीरियस टर्न, व्हेन एन ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड इन अ केस इन विच देयर हैज़ बीन अ क्रिमिनल असॉल्ट, या फिर इन ऑपरेशन ऑफ मल्टीटेटिंग या डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑन एन अनबॉर्न चाइल्ड, या फिर व्हेन डिज़ायर्ड बाय द पेशेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है अटेंडिंग अ पेशेंट हु इज़ अंडर द केयर ऑफ अनदर प्रैक्टिशनर, या फिर टेकिंग द चार्ज ऑफ सच पेशेंट। फिर है रिफ्यूजिंग या रिफ्यूजिंग टू गिव द प्रोफेशनल सर्विस ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स पे। नेक्स्ट है contravening the provisions of the Drug Act and regulation made thereunder, example by selling the scheduled poison to a public under cover of his own qualification except to his patient। दूसरा पॉइंट है writing the prescription in a secret formula, जो कि सिर्फ नॉन हो टू सम पर्टिकुलर फार्मेसीज को। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कमर्शलाइजेशन सीक्रेट रेमेडी की। फिर है रनिंग एन ओपन शॉप फॉर द सेल ऑफ मेडिसिन के लिए, या फॉर डिस्पेंसिंग द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अदर डॉक्टर, और फॉर द सेल ऑफ द मेडिकल या सर्जिकल अप्लायंसेस के लिए। उसके बाद है इम्प्रॉपर एसोसिएशन विद द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। देन है रिसीविंग या गिविंग द कमीशन और अदर बेनिफिट्स फ्रॉम और टू अ प्रोफेशनल कोलीग, अ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, केमिस्ट एक्सेट्रा। गिविंग अ कमीशन बाय वन डॉक्टर टू अनदर फॉर रेफरिंग या रिकमेंडिंग के लिए, या प्रोक्यूरिंग के लिए किसी पेशेंट को फॉर द मेडिकल, सर्जिकल या अदर ट्रीटमेंट। इसको हम डायकोटोमी कहेंगे, या फ़ी शेयरिंग या फ़ी स्प्लिटिंग कहेंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है इशूइंग द फॉल्स सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट टू द बर्थ का या कॉज ऑफ डेथ का, इलनेस का, इंजरी का, वैक्सीनेशन, मेंटल इलनेस एक्सेट्रा। फिर है टॉकिंग डिस्पैरिंगली अबाउट द अदर कोलीग्स और डूइंग एनीथिंग दैट मीन्स अनफेयर कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है कन्विक्शन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। कंप्लीट हो गया यहाँ पे ये टॉपिक हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली डिस्कस करें कंपलसरी और वॉलंटरी ड्यूटीज़ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की टुवर्ड द स्टेट एंड पेशेंट। मेंशन करें सर्कमस्टांसेस जिसके अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड सीक अ कंसल्टेशन। इसके अलावा कमेंट करें डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पे। फिर डिस्कस करें ऑब्लिगेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर की इन रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल सीक्रेसी। व्हाट इज़ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, इसकी एग्जांपल दें और डिस्कस करें पोजीशन मेडिकल प्रैक्टिशनर की विद रिस्पेक्ट टू सच कम्युनिकेशन। सबसे पहले कंपलसरी ड्यूटीज़ मेडिकल प्रैक्टिशनर की, ये रिलेट होती हैं टू नंबर 1 कंपलसरी नोटिफिकेशन एंड नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की। सबसे पहले देखें कंपलसरी नोटिफिकेशन। लेकिन जो बर्थ्स हैं, डेथ्स हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, फूड पॉइजनिंग है किसी रेस्टोरेंट से, ठीक है। कुछ स्टेट्स में इंडस्ट्रियल डिजीज़ भी नोटिफाइबल होती हैं। नंबर 2 हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द स्टेट। इसमें है नंबर पहले है ए रिस्पॉन्डिंग टू द एमरजेंसी मिलिट्री सर्विस। नंबर बी रिपोर्टिंग द केसेस ऑफ होमिसाइडल पॉइजनिंग का, या फिर सस्पेक्टेड जो होमिसाइडल इंजरीज़ हैं जैसे कि स्टैब या गन शॉट वुंड। नंबर सी है रिपोर्ट करें किसी सर्टेन केस का जो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, स्पेशली जैसे कि एज रिगार्ड टू द मॉरल एंड सोशल ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिमिनल मैटर्स में। नंबर डी रिपोर्ट करें अननेचुरल डेथ को, और नंबर ई रिपोर्ट करें सस्पेक्टेड अब्यूज़ बच्चों का, स्पाउस का या एल्डरली का इन सम कंट्रीज़। नेक्स्ट है वॉलंटरी ड्यूटीज़ ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब इसमें क्या आ जाता है, ये रिलेट होती है टू नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पेशेंट्स। नंबर 2 है मेडिकल एग्जामिनेशंस।
नंबर 3 होते हैं ऑपरेशंस हो गए। नंबर 4 इशूइंग ऑफ द सर्टिफिकेट्स। नंबर 5 जैसे प्रिजन्स हैं और रिफॉर्मेटरीज। नंबर 6 मेडिको लीगल एग्जामिनेशन हो गई और सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, इसके अलावा सेंडिंग द पैथोलॉजिकल मटेरियल बाय पोस्ट। एंड नंबर 9 अटेंडिंग टू द एक्सीडेंट्स। नंबर 1 है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पेशेंट्स। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ए है टू कंटिन्यू टू ट्रीट, बी है कि रीज़नेबल केयर हो, इसके अलावा रीज़नेबल स्किल हो, कीप द प्रोफेशनल सीक्रेट इनवायलेट एक्सेप्ट अंडर द प्रिविलेज सर्कमस्टांसेस, नॉट अंडरटेकिंग द प्रोसीजर बियॉन्ड द स्किल जो हो आपकी। फिर स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इन द केस ऑफ बच्चों में और एडल्ट्स के केस में जो कि कैपेबल नहीं है ऑफ टेकिंग केयर बाय देमसेल्व्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम हॉट वाटर बोतल अप्लाई करें। इसके अलावा स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इन रिस्पेक्ट टू द डेंजरस ड्रग और पॉइजन्स हो गए। फिर है कंसल्टेशन अदर कोलीग के साथ अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। एंड लास्ट है कीपिंग द अब्रेस्ट ऑफ रीसेंट एडवांसेस इन द मेडिकल इन द फील्ड। नंबर 2 पॉइंट हमने कहा मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, तो कंसेंट लेना चाहिए, रिजल्ट्स को सीक्रेट रखना चाहिए, लेबॉर्ट्री एड्स यूटिलाइज्ड व्हेन नेसेसरी, और एक्सरेज लेने चाहिए इन ऑल केसेस ऑफ एक्सीडेंट अनलेस ट्रेवाइल। थर्ड पॉइंट हमने कहा ऑपरेशन। देखिए, इसमें भी कंसेंट लेंगे, नेचर एक्सटेंट का और रिस्क उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर प्रिकॉशंस लेंगे कि हम रॉन्ग पेशेंट पे ना ऑपरेट कर लें या किसी रॉन्ग पार्ट पे। फिर प्रिकॉशंस लेंगे फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट बाय हम इसको इंश्योर करेंगे फिटनेस फॉर द एनेस्थीसिया ऑफ पेशेंट है फिट है। चेक ऑफ द काउंट एज रिगार्ड स्पंजेस, नीडल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स, ये सारी हम चेक करेंगे, काउंट करेंगे पूरे हैं। और लास्ट में नो एक्सपेरिमेंटेशन, ऑपरेशन में एक्सपेरिमेंट नहीं करना। चौथा है इशूइंग ऑफ द सर्टिफिकेट्स। हमसे इलनेस हो गई, वैक्सीनेशन, डेथ हो गई, या कुछ इंस्टेंस में कंपनसेटरी, क्रीमेशन एक्सेट्रा, ये हो गए। डेटा जो मेंशन होता है इन द सर्टिफिकेट वो सच्चा होना चाहिए और बेस्ट हो ऑफ द डॉक्टर्स नॉलेज एंड बिलीफ।